Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay and welcome to Rooted, a channel dedicated to provide quality guidance for history optional. Now, before I begin, I would like to say that in case you want the notes, you don't have to take screenshot. You can just go and subscribe to my channel, that is Rooted by Jyoti Upadhyay, and there I'm going to upload all the notes. Already notes have been uploaded of my previous videos. You can go and check it out. And also do check out the playlist. Now the thing is, the best way to prepare for any exam is through the PYQs, right? All of us agree to that. And the best way how you can learn how to write answers is not by randomly going and seeing videos, but it is by writing answers yourself, right? So I have started the series of I give you a kind of structure, I give you a base on which you can build upon your own answer. And we do that through PYQs. So the PYQ for today is, the Puranas were an innovative genre of literature to popularize and revive the Vedic religion. Elaborate with examples. Now, what exactly is the meaning of this question? See, if you just read notes, you will not be able to answer this. The question asks whether you know or not the difference between what exactly were the Vedas and what exactly were the Puranas and why both of them were written, right? So, Vedas, as you know, is considered to be a part of what? It's considered to be a part of Shruti literature, right? And the Puranas are part of Smriti literature. So, what is the difference between them? देखो, ऐसा मानते हैं ना कि there was a time in the Rig Vedic period. Basic chronology अगर आपको पता है, you will know that the Vedic period was between 1000, approximately between 1500 BC to 500 BC. Now, it is said that it is between this period when the rishis and gurus, when they were doing sadhana, when they were in a state of meditation, at that point of time, the gods revealed to them the components of the Vedas, the hymns, etc. That was revealed to them when they were in that state of meditation. And how did the gods reveal to them? By orally, उनको बता के. So that is Shruti. तो इसलिए हम क्या करते हैं? Vedas are part of Shruti literature. And everything else apart from the Vedas is a part of Smriti literature. Because these rishis, what they did is, they passed it on to their disciples. Their disciples passed it on to the next generation. तो इस तरीके से क्या है? They are याद कर रहे हैं इसको, ठीक है? स्मृति कर रहे हैं. याद करके आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को उसको पास डाउन कर रहे हो, ठीक है? So this is the difference between Shruti and Smriti literature. Very basic, okay? Now there is also a purpose कि वेदास को जिस टाइम पे लिखा गया था उसका ऑडियंस अलग था, उसका पर्पस अलग था. The time when the Puranas were written, the audience was different, the purpose of writing the Puranas was different, right? Now what is the main difference? The main difference is the people for whom it is being basically composed. The Vedas were composed for the Brahmanas, okay? And here Brahmanas does not exactly mean Brahmanas by caste. Here what I mean is Brahmanas are learned men, okay? So Vedas are composed in advanced Sanskrit, whereas Puranas on the other hand are written in much simpler Sanskrit, and some Puranas in the later times are also written in what? Are also written in vernacular languages. For example, we have Padma Puran. Padma Puran is written, some parts of it is also written in the वर्नाकुलर लैंग्वेज. अब वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? किसको लिख रहे हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज में? बिकॉज अगर आप ब्राह्मण्स के लिए लिख रहे हैं तो उनको तो लर्नड मैन, दे ऑलरेडी नो संस्कृत. यू कैन इवन राइट एडवांस्ड संस्कृत एंड दे विल नो अबाउट इट. बट इफ यू आर चूजिंग to compose the Puranas in a much simpler Sanskrit in vernacular languages, that means definitely you are aware of the audience for whom you are basically writing this particular thing. ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया. Next thing that happens is that these Vedas, what are the components? देखो, जो learned लोग हैं, for example, there is a difference. A professor will be very comfortable. For example, if we have a very scholarly book, थोड़ा बोरिंग सा बुक है, प्रोफेसर विल बी द पर्सन जो कि आराम से बैठ के उस बुक को पेशेंटली पढ़ेगा. बट सिमिलरली इफ यू गिव द सेम बुक टू मे बी अ स्कूल स्टूडेंट or to maybe you know a college first year student, he will not find it that interesting. For him to catch attention, the professor has to come down in the class, he has to break down the book in an interesting way so that the student will now go home and find the book interesting to read, and that too into parts. समझ में आया? तो इस तरीके से क्या है ना कि पुरानास को, वेदास में क्या है? वेदास में हिम्स हैं, ठीक है? हिम्स पे फोकस किया गया है, उनको सैक्रिफाइसेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है. लेकिन पुरानास ऑन द अदर हैंड, दे कंटेन स्टोरीज, दे कंटेन माइथोलॉजीज, दे कंटेन जेनोलॉजीज ऑफ किंग्स. उनके राजाओं के बारे में लिखा गया, कथा लिखा गया. फॉर एग्जाम्पल सत्यनारायण कथा, हम सबको पता है कि सत्यनारायण कथा क्या है, घर पे करवाया जाता है. सत्यनारायण कथा कहाँ से आया है?
वेद से नहीं आया है, इट हैज़ कम फ्रॉम आई थिंक इट इज़ फ्रॉम दिस स्कंद पुराण, ठीक है। तो स्कंद पुराण आउट ऑफ द 18 पुराणास, वन ऑफ द पुराणास इज ऑल्सो स्कंद पुराण, ठीक है, लॉर्ड कार्तिकेय को डेडिकेटेड है वो। तो उसमें ये जो सत्यनारायण भगवान का जो कथा होता है वो उसमें लिखा गया है। इस तरीके से कथा ऑल्सो देर इज मैंशन अबाउट पिलग्रिमेज साइट्स, बिकॉज लोगों को क्या है, पीपल दे जनरली कनेक्ट टू रिलीजन व्हेन दे फील मच मोर इन्वॉल्व इन इट, जब वो एक्टिवली उसमें अपने आप को इन्वॉल्व फील करते हैं। मतलब मंदिर जाना, वेदास में कहीं भी मंदिर में जाके भगवान को पूजा करने के बारे में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। इट हैज़ नॉट बीन कंपोज्ड इन अ वे। इन द वैदिक पीरियड द मेन फोकस वाज ऑन यज्ञास, ठीक है। यज्ञास मतलब क्या है, हवन, यज्ञ, जिसमें क्या है, जिसमें आप चीज़ें डालते हो, अग्नि है, अग्नि में आप चीज़ों को डालते हो, और ऐसा मानते हैं कि धूमकेतु जो धुआं है वो उसको लेके जाता है टू द गॉड्स, ठीक है। दैट इज द आइडियाज ऑफ द that is propagated by the Vedas. It focuses on sacrifices, it focuses on rituals, it does not exactly focus on तीर्थ यात्रास या फिर कोई रिवर को इंपॉर्टेंस देना, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स, इंपॉर्टेंस टू सर्टेन गॉड्स, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें, व्रत, वाव जिसको हम बोलते हैं, व्रत किस में है, व्रत जो कल्चर है उसको पॉपुलराइज किस में किया गया है, उसको पॉपुलराइज किया गया है पुराणास में। सो इट इज़ टू मेक द पुराण, इट इज़ टू मेक द हिंदू रिलीजन, the Brahmanical religion, to be honest, it is to make the Brahmanical religion popular among the masses. तो जब ये किया गया है तो इसमें हमें ना ये जानना पड़ेगा कि ठीक है, हमने इतना तो समझ लिया कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों का पर्पस क्या है। अब ज़रूरत क्या पड़ गया इसको लिखने का, है ना। वेदास वर कंपोज, आई टोल्ड यू, बिटवीन दिस अप्रॉक्सीमेटली 1500 BC टू 500 BC। लेकिन पुराणास का कॉम्पोजिशन, लेट अस कम एंड सी दिस। पुराणास का कॉम्पोजिशन क्या है, पुराणास का कॉम्पोजिशन इज फ्रॉम 3rd century AD टू 10th century AD। अब 3rd century AD कौन सा पीरियड है, 3rd century AD इज अ पीरियड जस्ट बिफोर द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड क्या है, गुप्ता पीरियड इज अराउंड 321-322 BC AD के आसपास, जो कि हमारे 4th century में चला जा रहा है। तो जो पुराणास हैं वो 3rd century AD से कंपोज करना उनको स्टार्ट हो रहा है, एंड इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कंपोजिशन, ऑलमोस्ट 10th century तक चल रहा है। 10th century क्या है, 10th century इज अर्ली मिडिवल पीरियड। वी हैव द कमिंग ऑफ द अरब्स। अरब्स इंडिया में कब आ रहे हैं, अराउंड 711 AD, यानी कि 8th century AD। तो अरब्स के आने के बाद तक पुराणास का कंपोजिशन चल रहा है। सो व्हाई इज इट सो, राइट? द एग्जामिनर एग्जैक्टली वॉन्ट्स टू नो दिस फ्रॉम यू थ्रू दिस पर्टिकुलर question, right? So that's why they say that Puranas were an innovative genre of literature to popularize and revive the Vedic religion. We saw that definitely it was to popularize the Vedic religion among the masses, right? And elaborate with examples. Definitely we are going to see the examples in a while, right? So ये तो मैंने आपको बता दिया अभी कि वेदास क्या है, they are spiritual texts that are composed purely in Sanskrit, which contains hymns, mantras, sacrificial rituals. They were written for the priestly class and not for a mass appeal, ठीक है। पुराणास के बारे में भी आई हैव टोल्ड यू, यू कैन जस्ट रीड इट फ्रॉम हियर। दे आर पार्टली रिलीजियस टेक्स्ट विच कंटेन स्टोरीज, लेजेंड्स, मिथ्स एटसेट्रा, हाईलाइटिंग द आइडियाज। जस्ट यू कैन रीड फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द नीड टू राइट द पुराणास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी व्हाट वाज द नीड एग्जैक्टली टू राइट द पुराणास? If you are aware of ancient Indian history, a little basic, you will know कि there was from the 5th century BC, not 5th actually, from the 6th century BC, यानी कि वैदिक पीरियड कब से है? वैदिक पीरियड है हमारा 1500 BC से लेकर के 500 BC तक, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम 6th century BC भी बोल सकते हैं। तो 6th century BC में there were some changes in the society, some changes in the economy, some changes in the इस साल के आई थिंक इस साल के GS के पेपर 1 में, इस साल या पिछले साल के, वी हैव दिस क्वेश्चन, ठीक है, कि वैदिक पीरियड में सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द वैदिक पीरियड, दे हैड आस्क्ड अबाउट इट, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए सारी चीज़ें, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल। यू टेक हिस्ट्री ऑप्शनल, ऑलरेडी अ मेजर चंक ऑफ योर GS पेपर 1 इज कवर्ड, ठीक है। चलो, तो 5th ओके, सो यहाँ पे क्या है, 6th century BC में इंडिया में बहुत सारे क्या हुए थे, सोसाइटी में, इकोनॉमी में चेंजेस हो रहे थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस हो रहे थे। देयर वाज अ राइज ऑफ 16 महाजनपदास, ग्रेजुअली बिगर किंगडम्स वर कमिंग अप, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर वाज डिस्कवरी ऑफ आयरन ऑल्सो। Then there was also the new classes were coming up. For example, we have Gahapatis, we have Shettis, guilds are becoming powerful. ये मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो से बता चुकी हूँ मैं। तो इस तरीके से क्या है ना कि ये चेंजेस हो रहे थे। As a result of these changes, there were many people who did not found who were not able to connect better with the existing Vedic religion, because they found it either to be very costly,
or maybe the caste system had become very entrenched, or maybe they did not find their answers whatever they were looking for. The mantras had become very complicated, the hymns had become very complicated, there was a kind of brahmanical domination that had been established, even the kshatriyas were not very happy. Go and see the first video that I have uploaded. I have mentioned all of this in details. एज अ रिजल्ट वहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारे, एंड ऑल्सो द थ्योरी ऑफ कर्मा वॉज देयर, ठीक है, तब तक क्या है कि चतुराश्रम था, उसमें लोगों ने थ्योरी ऑफ कर्मा, उपनिषद, इन सारी चीज़ों पे था. So now what is happening is there were several Protestant sects that had started coming up, heterogeneous Protestant sects. For example, we have Buddhism, we have Jainism, we have Lokayatas, चारवाक्स जिसको हम बोल रहे हैं, लोकायतास, चारवाक्स, वी हैव दिस आजीविकास, ठीक है, हमारे पास इतने सारे हैं, और भी इनके अलावा XYZ हमारे पास बहुत सारे हैं ना. दीज आर द मोस्ट पॉपुलर वंस. So what is happening is a large number of people, they are basically adopting these heterogeneous sects. For example, मौर्यास को अगर हम देखें, मौर्यन डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 320 से लेकर के बहुत जगह पे 320, 321, 322, वहाँ से लेकर के क्या है 185 BC तक. और मौर्यास ने क्या किया था, मौर्यास वर एक्टिवली, दे वर सपोर्टिंग they were kind of supporting Buddhism. मौर्यास के बाद कौन है, मौर्यास के बाद हमारे पास आए हैं यहाँ पे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, वी हैव इंडो ग्रीक्स, कुशानास एंड सो ऑन. ये भी क्या है, ये भी बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं. सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ सपोर्टर ऑफ जैनिज्म. तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वॉज बिकमिंग वेरी पॉपुलर अमंग द मासेस, दैट एज वेल एज द ट्रेडर्स. तो इस तरीके से क्या है ना, एंड एज वेल एज ग्रेजुअली क्या है हमारे पास सदर्न इंडिया में, यहाँ पे मैंने 7th century लिखा है, नैनार्स एंड अलवर्स, बट ग्रेजुअली फ्रॉम 6th century इटसेल्फ टेंडेंसी हैड स्टार्टेड, ठीक है, जहाँ पर क्या है 6th century AD की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 7th century AD, 6th century AD, वहाँ पे क्या है ग्रेजुअली टेंडेंसीज हैड स्टार्टेड, जहाँ पे लोग क्या है ना कि पीपल वर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द वैदिक रिलीजन, सो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स. एंड इट इज़ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम that they decided कि we have to write a book, not exactly write but we have to compose a book. Writing and composing में difference है. writing मतलब उसको आप कहीं जगह पे लिखते हो, compose करना मतलब कि orally भी उसको आप compose किया सकता है in a textual form. Again there was a video last day that I had uploaded, उसमें मैंने difference between text and literary sources ये मैंने समझाया था, that how oral history is part of texts but oral history is not part of exactly literary sources and so on. तो मतलब just go and see that it's a very loose kind of definition, but आप वहाँ पे जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा clearly, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे when I'm saying is कि ये एक नीड था, ठीक है, कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो हेट्रोजेनस सेक्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, तो इनको क्या करना था, इनको वापस से रिवाइव करना था ब्राह्मणिकल रिलीजन को. और इसके लिए व्हाट दे डिसाइडेड इज, दे डिसाइडेड टू कंपोज द पुराणास, राइट, नॉट राइट बट कंपोज द पुराणास. They were written down much later. So ये जो पुराणास को कंपोज कर रहे हैं, नाउ द क्वेश्चन वाज कि हमने कंपोज तो कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर तो हमें थोड़ा बहुत मिल गया. अब यहाँ पर है कि इन पुराणास को हम जब कंपोज कर रहे हैं, और अच्छा टाइम पीरियड मैंने क्या बताया पुराणास का कंपोजिशन का, 3rd century AD से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 10th century AD तक. तो बीच में क्या है हमारे पास आए गुप्ता पीरियड, ठीक है. गुप्ता पीरियड में जो है गुप्ता रूलर्स, दे एक्चुअली स्टार्टेड पेट्रोनाइजिंग द ब्राह्मणिकल कल्चर. सो अब क्या है, ब्राह्मणिकल कल्चर को अभी तक जो मौर्यास के अंडर में, पोस्ट मौर्यास, कुशानास वगैरह के अंडर में उतना ज़्यादा फंडिंग एंड पेट्रोनेज नहीं मिला था, अब क्या है फंडिंग एंड पेट्रोनेज भी मिलना स्टार्ट हो रहा है. सो नाउ व्हेन दे आर गेटिंग फंडिंग एंड पेट्रोनेज, व्हाट इज हैपनिंग इज अगेन देयर इज अ renewed interest in the Brahmanical culture and the Puranas are starting to be composed. I hope you understand how politics and this thing is going together simultaneously. ठीक है, तो ये मैं जनरली बोलती हूँ सबको कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स जो है ना बहुत अलग अलग नहीं चलता है, दे आर पार्ट एंड पार्सल. इट्स अ सैड थिंग बट देन व्हाट हैपेंस इज इट्स ऑलवेज अ पार्ट एंड पार्सल, दे समहाउ गेट एंटैंगल्ड टुगेदर, ठीक है. सो एनीवेज, सो गुप्ता पीरियड में देयर वाज रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर, और वहाँ से वापस से क्या है रिन्यूड इंटरेस्ट इज हैपनिंग एंड ग्रेजुअली द पुरानास का जो कॉम्पोजिशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है पुरानास का कॉम्पोजिशन. अब ये था कि किस तरीके से हम इसको लोगों में पॉपुलर बनाएं, किस तरीके से हम इसको लोगों को अट्रैक्ट करें इसमें. सो द थिंग्स दैट वर डन इज, उसी को हम बोल रहे हैं इनोवेटिव फीचर्स, ठीक है, कि क्या इनोवेशन किया गया माइंड में, कि किस तरीके से हम मासेस को अट्रैक्ट करें, दैट इज इनोवेटिव फीचर्स, ठीक है. तो लेट अस सी द इनोवेटिव फीचर्स वन बाय वन. सो यहाँ पे इनोवेटिव फीचर में सबसे पहला क्या है, दे स्टार्टेड कंपोजिंग द पुरानास इन एक्सेसिबल लैंग्वेज एंड फॉर्म, ठीक है. फर्स्ट थिंग, simple Sanskrit appeal to the common people rather than the priests,
right? Second is there was a shift from what? Shift from ritual to bhakti. Instead of costly yagnas, they emphasized on devotion, व्रत, festival and पूजा. ठीक है, इसमें एक चीज समझो, यहाँ पर जो मैंने बताया अबाउट द गुप्ता पीरियड, कि गुप्ता पीरियड में ब्राह्मणिकल रिलीजन का रिवाइवल हो रहा है, साथ ही साथ इतना उनको समझ में आ गया कि ब्राह्मणिकल रिलीजन का हम रिवाइवल तो कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमें इस तरीके से हमें गॉड्स को, अब लोग इतने सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, तो पीपल जनरली आर काइंड ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कनेक्ट विद देम. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों में भक्ति का भाव जगाना पड़ेगा. नाउ दे विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द प्रीस्ट्स, नाउ दे डोंट हैव टू फोकस ऑन सेवरल गॉड्स एंड गॉडेसेस. वो क्या करेंगे, अपने एक देवता जो है उनके संग वो डिवोशन से कनेक्ट कर पाएंगे. डिवोशन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया सिंगिंग, डांसिंग, मेडिटेशन, जो भक्ति मूवमेंट में हमें जनरली देखने को मिलता है. ठीक है, तो इसमें दिस वॉज अ शिफ्ट in the Brahmanical religion itself. Now the emphasis was not on sacrifices, now the emphasis was on devotion. Devotion through what? Devotion through singing and dancing to one singular god, right? To one singular god, and this singular god could be Krishna, this singular god could be Vishnu, this could be Shiva, this could be Shakti. ठीक है, तो ये जो हमें शिवा वर्शिप, विष्णु वर्शिप एंड शक्ति वर्शिप, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं इन ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट, बिकॉज यहाँ पर क्या है, हमें एक गॉड से लोगों को कनेक्ट करवाना था. ठीक है, तो ये भी एक काइंड ऑफ इनोवेशन है ऑफ द पुरानास, राइट. नेक्स्ट इज सो वर्शिप ऑफ डीटीज इन टेम्पल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आई कैनॉट एम्फसाइज दिस इनफ. वर्शिप ऑफ डीटीज इन टेम्पल्स, इसके पहले वैदिक पीरियड में यज्ञ पे फोकस करते थे, तो यज्ञ पे फोकस कर रहे हैं, तो डीटीज और टेम्पल्स कहाँ से आएंगे. एनीवेज इफ यू सी, आपको मौर्यन टाइम के पहले या फिर इवन टिल द टाइम ऑफ द मौर्यस देयर आर नो टेम्पल्स. ठीक है, बिकॉज टेम्पल वर्शिप था ही नहीं. इतने सारे लोग आए हैं, राजा राममोहन रॉय वॉज देयर, देन स्वामी विवेकानंदा, इन लोगों ने अपने ओपिनियन दिए हैं किसके बारे में, इन लोगों ने आइडोलेट्री के ऊपर अपना ओपिनियन दिया है. राजा राममोहन रॉय वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट आइडोलेट्री. स्वामी विवेकानंदा, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आइडल वर्शिप जो है वो एक स्टेज है, लोअर स्टेज है. एक बार आप उस स्टेज पे पहुंचते हो, उसके बाद यू मूव ऑन टू अ स्टेज जहाँ पे आपको और आइडल की जरूरत नहीं पड़ेगी टू वर्शिप, राइट. So basically Vedic religion had never been focused on temple worship, on this pilgrimage and so on. ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पुरानास के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये पुरानास के द्वारा पॉपुलराइज किया जा रहा है. ठीक है, जो कि बहुत बाद वाले पीरियड्स में आ रहा है. सो वर्शिप ऑफ डेटीज इन द टेम्पल्स वॉज पॉपुलराइज्ड. पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा. रिलीजन वॉज मेड इमोशनली एंगेजिंग, मतलब अभी सिर्फ ब्राह्मण आ रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, चले जा रहे हैं, वो वाला चीज़ नहीं होगा. अभी होगा कि लोग एक्टिवली, उनको लगेगा कि हाँ हम तीर्थ करके आए हैं, तो हमने पुण्य कमाया है. ठीक है, सो आप देख सकते हो कि व्हाट इज हैपनिंग, कि द मोर हायर यू एलिवेट योर सेल्फ इन रिलीजन, यू विल रियलाइज दैट यू डोंट नीड टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. व्हाट यू ओनली नीड टू डू इज यू नीड टू फॉर्म अ सिंपल कनेक्शन विद गॉड. समझ में आ रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें पॉपुलराइज करने के लिए रिलीजन को बनाई गई है. एक्चुअल जो अगर हम हिंदुइज्म का, अगर हिंदुइज्म तो चलो, हिंदुइज्म भी राजा राममोहन रॉय ने ये वर्ड यूज़ किया है बाद में, बट अगर हम ब्राह्मणिकल रिलीजन बोले, ठीक है, तो इसका एसेंस ही ये है कि हमें प्योरली भगवान को, हमें एक तरीके से हम भगवान को इमेज के फॉर्म में विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, हम भगवान से सीधा कनेक्शन डिवोशन की तरह कर रहे हैं. हमें 10 जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ, डेफिनेटली नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट देन इट इज़ नॉट mandatory. Okay, so if you cannot go on a तीर्थ यात्रा and you are old, so you should not feel bad और कि यार मैंने तो तीर्थ नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ. Okay, let us move forward. Myths, legends and storytelling, this was introduced. ठीक है, to make it popular among the masses. They used genealogies, mythological stories, fables to convey religious ideas. As I told you शुरू में ही, कि अगर एक वो प्रोफेसर और एक स्कूल स्टूडेंट का एग्जाम्पल मैंने बताया, कि एक अच्छा खासा मोटा ड्राई बुक दे दोगे तो दोनों को समझ में, दोनों को, प्रोफेसर विल रीड थ्रू दैट, द स्टूडेंट विल नॉट फाइंड इट कनेक्टिंग. फॉर दैट द प्रोफेसर विल हैव टू कम टू क्लास एंड मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर देम. सो वी हैव द यूज ऑफ माइथोलॉजिकल स्टोरीज, वी हैव द यूज ऑफ फेबल्स. जीनोलॉजीज, जीनोलॉजीज क्या है, राजा के द डिसेंडेंट्स. ठीक है, मतलब ये इवेंट, ये जनरेशन, उसके बाद दिस जनरेशन, उसके बाद दिस जनरेशन, सो ये सारी चीज़ें भी लिखी जा रही हैं. इफ़ यू कम टू दिस पेज 26 इन उपिंदर सिंह, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, द पुरानास आर सपोज टू हैव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, पंच लक्षण, दैट इज दे आर सपोज टू डिस्कस 5 टॉपिक्स. फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, नेक्स्ट इज रिक्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड वंस इट इज बेसिकली डिस्ट्रॉयड, देन इज
Then is period of various manus and genealogies of gods and rishis and an account of royal डायनास्टीज. ठीक है, रॉयल डायनास्टीज में क्या है, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, बहुत सारे लोग स्टिकर वगैरह चिपका के चलते हैं विदाउट एग्जैक्टली नोइंग द मीनिंग. सी वाई दीज जेनोलॉजीज वर रिटन, क्यों हम इसको सूर्यवंशी, चंद्रवंशी इनके संग एसोसिएट कर रहे हैं? बिकॉज ये क्या है ना, ये एक अथॉरिटी, पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उस पर्टिकुलर टाइम का, उसको भी एक लेजिटिमाइज करना चाहते थे. ठीक है, एज आई टोल्ड यू दैट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स दे शुड बी डिफरेंट बट समहाउ दे ऑलवेज आर इंटरलिंक्ड टुगेदर. Genealogies were included, to popularize and to legitimize those dynasties, those genealogies, and that was done by giving it a kind of, by linking it to some extraterritorial things, for example terrestrial things, for example sun and moon. ठीक है, वो रूल कर रहे हैं. वाई? बिकॉज दे आर डिवाइन. समझ में आया? इस तरीके से. सो also there is a difference between the ideal of kingship of the Mauryas and the Guptas. For example, Mauryas considered themselves as what? Devanam Piya Piyadasi, that is beloved of the gods. The Guptas considered themselves more as kind of divine status. ठीक है, तो that also explains this Suryavanshi and Chandravanshi and why basically genealogies और किस तरीके से उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको gods के संग एसोसिएट कर रहे हैं. ठीक है, नॉट गॉड्स एग्जैक्टली बट सुपर नेचुरल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थिंग्स के संग हम एसोसिएट कर रहे हैं उनको. सो इट एंगेज्ड, एंटरटेन्ड एंड ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड. तो तीनों चीज़ पुरानास क्या करते हैं, साथ में करते हैं. लोगों को एंगेज भी रखते हैं, अटेंशन भी उनका ड्रॉ करके रखते हैं थ्रू स्टोरीज. देन इज इट कीप्स देम एंटरटेन्ड थ्रू माइथोलॉजीज एंड इट ऑल्सो इंस्ट्रक्ट्स देम. दोनों को साथ साथ करते हुए वो उनको ज्ञान भी देते रहते हैं. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस भी देते रहते हैं अबाउट धर्म, दैट हाउ बेसिकली दे शुड लीड देयर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेरियस स्टोरीज ऑफ द वेरियस अवतार्स ऑफ विष्णु, लॉर्ड शिवाज कॉस्मिक डांस, देवीज बैटल्स एंड सत्यनारायण कथा, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया. नेक्स्ट इज दे ऑल्सो गिव अस एन आइडिया अबाउट जोग्राफी एंड पिलग्रिमेज. उसको भी बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया जा रहा है. कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे गैंजेस रिवर को बहुत सेक्रेट पोजीशन पे रखना, यमुना रिवर को बहुत सेक्रेट पोजीशन पे रखना, काशी रिवर को बहुत सेक्रेट पोजीशन पे रखना. सो इंपॉर्टेंस ऑफ होली रिवर्स, तीर्थ यात्राज. नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ लोकल कल्ट्स. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इंटीग्रेशन ऑफ लोकल कल्ट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि पुरानास जो है ना, वो उनको समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, हमें ब्राह्मणिकल रिलीजन जो है इसको रिवाइव एंड पॉपुलराइज करना है. और हम इसको तभी कर सकते हैं जब लोगों के जो ओरिजिनल बिलीव्स है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो टू ईस्टर्न इंडिया, देर इज़ द वर्शिप ऑफ सम गॉड्स एंड गॉडेसेस. मे बी नॉर्थ में जो उतना ज़्यादा उन लोगों ने वो लोग उसको पूजा नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, ये है कि उस वहाँ के जो लोकल गॉड्स एंड गॉडेसेस थे उनको भी हिंदुइज्म में हमने क्या किया, हिंदुइज्म में हमने एसिमुलेट कर लिया. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो बीइंग डन बाय द पुरानास टू मेक इट मोर पॉपुलर अमंग द पीपल. उनके जो लोकल डिटीज़ हैं, लोकल गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, उनको भी हम ब्राह्मणिकल फोल्ड के अंदर लेके आ रहे हैं थ्रू स्टोरीज, थ्रू माइथोलॉजिकल स्टोरीज, टेल्स, फेबल्स एंड सो ऑन. ठीक है, नेक्स्ट इज रॉयल लेजिटिमेसी. ये जो मैंने बताया, दे गेव द किंग्स डिवाइन जेनोलॉजीज, दैट इज सोलर लूनर, दैट इज सो री इन्फोर्स धर्मा एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी. ठीक है, ये हो गया. एंड नेक्स्ट व्हेन वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन थ्रू एग्जाम्पल्स. ये कुछ एग्जाम्पल्स हमें देना है. हमने जो भी अभी तक बोला उसका एग्जाम्पल्स क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं विष्णु पुराण. विष्णु पुराण में क्या है, इट ग्लोरीफाइज लॉर्ड विष्णु एज सुप्रीम एंड स्ट्रेस्ड भक्ति इन प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस. ठीक, भक्ति इज इन प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस एज अ पाथ टू मोक्ष. ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले पाथ टू मोक्ष एक्सेट्रा सब क्या बोलते थे, यज्ञ बोलते थे. लेकिन विष्णु पुराण में क्या है, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही वो मार्ग है. एंड भक्ति का मैंने बता दिया, भक्ति मतलब क्या हो गया, भक्ति मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क ऑन फॉर्मिंग अ डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड, नॉट थ्रू अ प्रीस्ट हु इज कमिंग एंड परफॉर्मिंग यज्ञास. ओके, दैट इज वन थिंग. नेक्स्ट इज मरकंडे पुराण. मरकंडे पुराण में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट गॉडेसेस. ठीक है, शक्तिज्म को काफ़ी ज़्यादा शक्तिज्म पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है. किस पे, मरकंडे पुराण पे. अगेन भक्ति में मैंने क्या बोला, शिवा, विष्णु, विष्णु से एसोसिएटेड वी ऑल्सो हैव कृष्णा एंड वी हैव देवी वर्शिप. ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में वी हैव देवी वर्शिप. देवी को सुप्रीम दिखाना, ये भी क्या है, ये भी किया गया है ताकि लोग और ज़्यादा कनेक्टेड फील करें. अगर सिंगल गॉड होगा जिसको वो बिलीव करेंगे तो और ज़्यादा वो कनेक्टेड फील करेंगे उनसे. ठीक है, सो द एलिवेटेड गॉडेस एज अ सुप्रीम, शक्तिज्म को बढ़ावा दे रहा है. देन वी हैव इज दिस मत्स्य एंड कूर्म पुराण. मत्स्य एंड कूर्म पुराण क्या कर रहे हैं, दे मिक्स्ड कॉस्मोलॉजी विथ स्टोरीज ऑफ धर्मा एंड जोग्राफी. ठीक है, तीर्थ वगैरह पे फोकस कर रहे हैं.
And finally, in the conclusion, you can say, by blending devotion, mythology, geography, and geography, they revived the Vedic religion, made it accessible to the masses, and laid the foundation of Hinduism as a popular devotional religion. Right? तो इस तरीके का, this is not a perfect conclusion. Perfect conclusion will be written by you. A perfect answer will be written by you. This is a structure. इंट्रोडक्शन में हमेशा क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन शुड ऑलवेज गिव द एग्जामिनर एन आइडिया दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, राइट? तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें अगर हम इस क्वेश्चन में अगर हम देखें अबाउट द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पुरानास वेर एन इनोवेटिव जेनर ऑफ लिटरेचर टू पॉपुलराइज एंड रिवाइव द वैदिक रिलीजन। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये पुरानास जो है, पीरियड ऑफ कॉम्पोजिशन पुरानास का ये है, और ये बैकग्राउंड था जिसकी वजह से पुरानास को कंपोज किया गया ताकि वो रिवाइव और पॉपुलराइज कर सके वैदिक रिलीजन। फिर हम उसको बॉडी में क्या कर सकते हैं? एलैबोरेट कर सकते हैं, या फिर वी कैन डू अ स्मॉल कंपैरिजन बिटवीन वेदास एंड पुरानास, द ऑडियंस, द पर्पस फॉर विच इट इज रिटन, एंड थोड़ा सा वहाँ पे हमने ऐड कर दिया कि पुरानास फॉर दिस दे वर एन इनोवेटिव जेनर। फिर हमने उसको बॉडी में उसको क्या किया? बिल्डअप किया। And conclusion should be a sync or the synopsis of whatever you have written in the body, but also it should indicate to the examiner that you have understood the question and you are concluding it properly. ठीक है? इंट्रोडक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जनरली लोग ना इसको ओवरसी करते हैं, बट इंट्रोडक्शन इज समथिंग दैट विल मेक द एग्जामिनर फील एक्साइटेड अबाउट रीडिंग योर बॉडी। अगर इंट्रोडक्शन में ही आपने ऊपर ऐसा कुछ लिख दिया जो मे बी जिसका कोई लेना देना ही नहीं है क्वेश्चन से, मे बी बॉडी आप बहुत अच्छा लिखो, बट देन एग्जामिनर को क्या लगेगा कि इसको तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। सो इंट्रोडक्शन शुड ऑलवेज मेक द एग्जामिनर फील दैट you have understood the question and it is worth to read your body. And conclusion definitely should be a summary of the whole thing, but again it should consist of the essence of the question. ठीक है? So thank you, and do visit the Telegram channel, subscribe to that, see the description for the 2 ongoing courses, that is a mentorship and answer evaluation, and stay rooted. Thank you.